پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج شام آپ کے لیے میں کلام مقدس میں سے ایک بہت انرجیٹک، بہت زبردست میسج لے کر آیا ہوں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ برکت دے گا۔ آپ کلام سنیں گے، آپ کی زندگی میں خدا اور قوت اور اپنی قدرت سے یسوع مسیح کی گواہی اور اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے آپ کو ابھارے گا۔ تو آئیے کلام مقدس کے لیے اپنے کان، دھیان، گھیان اور اپنا روح خدا کی طرف متوجہ کریں۔ آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے اظہار ثانی۔ اظہار ثانی پوری دنیا میں جب سے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں، ایون کہ جب وہ پیدا ہوئے تب سے ہی دشمن مسیح کے خلاف ہے، ابلیس مسیح کے خلاف ہے۔ اور وہ ابلیس اس وقت ہیروڈس کی صورت میں جبکہ یسوع پیدا ہی ہوئے تھے تو اس کی مخالفت میں تھا، اور آج تک یہ ایسا ہی ہے، آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تب وہ مسیح کے خلاف تھا، آج مسیحیت اور مسیحیوں کے خلاف ہے، اور یہ کبھی رکنے کا نہیں۔ پر ہمارے لیے ہمارے خداوند نے ہمیں جو تسلی اور اطمینان کلام مقدس کے وسیلہ بخشا ہے، ان سب باتوں کے ہونے سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے، نہ کہ ابلیس کی، شیطان کی ان تمام حرکتوں پر اور اس کی چلاکیوں، مکاریوں، اس کی ہوشیاریوں پر، بلکہ ہمارا فوکس خداوند یسوع مسیح پر اور اس کے کلام پر ہونا چاہیے۔ تب ہی ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایسا ہونا ضرور ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج ہم جو حوالہ پڑھیں گے، یہ بزرگ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کا 21واں باب ہے۔ 10ویں آیت سے میں کلام مقدس تلاوت کروں گا، آپ سماعت کیجئے گا۔ لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے، اور قید خانوں میں ڈھلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ غور سے سنیے، خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں اپنے فالوورز کو، ایمانداروں کو، یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ بعض کا ہم جب اظہار ثانی ہمارے اوپر آتی ہے، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یا ایسے انسیڈنٹس ہمارے محلے میں، ملک میں، شہر میں ہوتے ہیں، تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ سنیے کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح ہماری تسلی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب آپ یسوع مسیح کے لیے اس کے سچے گواہ ٹھہرو گے۔ آگے لکھا ہے، پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا۔ یسوع مسیح خود ہماری فکر کر رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع میں آپ کیا کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس وقت کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ سنیے، پھر سے میں بولتا ہوں، پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے،
बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। सुनिए, और मेरे नाम के सबब से सब लोग मतलब आप समझते हैं, दुनिया तुमसे अदावत रखेगी। किस वजह से? यीशु मसीह की वजह से। यह सबब है आज मसीहत के खिलाफ ये दुनिया किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में, कभी किसी रूप में, कभी किसी तरह, ये मुख्तलिफ तरह से तकलीफें, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद और हमले कर रही हैं। यीशु मसीह ने पहले ही हमें बता दिया है। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। हालेलुया। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे जाने पर खुदा बरकत दे। आमीन। तो हम बात कर रहे थे इज़हार रसानी के मज़मून पर। ये इज़हार रसानी पिछले दिनों में पाकिस्तान के शहर जड़ावाला में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने जाकर देखा कि वहां कैसे मसीहियों की बस्तियों पर, उनके घरों पर, उनके इलाके में अटैक किया गया, घरों को जलाया गया, घरों को तोड़ा गया और उनके सामान को बाहर घर से फेंका गया, तोड़ा गया, और इस तरह उन मसीहियों के खिलाफ एक बड़ा वहशियाना और हैबतनाक समा पेश किया गया। पूरे उस इलाके में खौफ और राज फैल गया। लेकिन हमें पहले ही से खुदावंद यीशु मसीह ने यह बताया है कि मेरे सबब से तुम्हारे साथ दुनिया अदावत रखेगी। इज़हार रसानी तो जब से दुनिया पैदा हुई है तब से ही है। कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं, पैदाइश की किताब का 4था चैप्टर, उस 4थे चैप्टर के 7वें वर्ष में जब बुजुर्ग आदम और बुजुर्गा मां हवा के औलाद पैदा हुई, पहले कायन पैदा हुआ, फिर हाबल पैदा हुआ। जो कायन था वो फिर बड़ा होके किसान बन गया, और हाबल था वो चरवाहा बन गया। तो वो जो कायन है वो खुदा के हुजूर हदिया जात लेके जाता है अपनी उस काश्तकारी के, और इसी तरह हाबल भी लेके जाता है। पर खुदा जो है वो कायन के हदिये को कबूल नहीं करता और हाबल के हदिये को कबूल करता है। तो जब वो हाबल के हदिये को कबूल कर लेता है तो जो कायन है वो हाबल के खिलाफ गुस्से में आ जाता है, और खुदा उसे कहता है कि तू क्यों गुस्से होता है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना ठहरेगा? फिर भी जो कायन है वो हाबल को कत्ल कर देता है। सबब क्या? इस वजह से कि उसको खुदा ने कबूल किया और उसके नजराने को, उसके हदिये को कबूल किया। आज जब से मसीह इस दुनिया में आया है, जितने लोगों ने मसीह को कबूल किया है, आसमान की कुदरत यीशु मसीह की सूरत में उनके पास दौलत है। और चोर वहां आता है जहां कीमती चीज पड़ी है, और मसीहियों के पास आसमानी खजाना है। दुनिया के चोर, दुनिया के डकैत इस अबलीस और शैतान की सूरत में इसलिए मसीहियों का पीछा करते हैं कि उनकी जिंदगी में मसीह है। मसीह वो शख्सियत है जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। उसके पास मुर्दों को जिंदा करने का, उसके पास अंधों को बेनाई देने का, उसके पास लंगड़ों को चलाने का, बदरूगरिस्तों को आजाद करने का और गुनाहगारों को माफ करके नजात देने का इख्तियार है। इसलिए दुश्मन उसके खिलाफ है, और दुश्मन मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ रूप में मसीह के लोगों के खिलाफ, जिन्होंने मसीह को कबूल किया, वो इसी तरह, जिस तरह कायन हाबल के खिलाफ था, इसी तरह वो भी मसीह के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमें इन बातों से, इन लोगों के साथ किस तरह मुकाबला करना चाहिए? क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त की लड़ाई नहीं है।
जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा मेरे सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। सबब क्या है? मसीही लोगों के खिलाफ इस तरह उन पर हमला करना, उनके चर्चेस को जलाया जाना और उन लोगों के खिलाफ उनको उनकी इंसल्ट करने के लिए मुख्तलिफ जुमले बोले जाने। ये क्या है? ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनके पास यीशु मसीह है और यीशु मसीह के सबब से उन लोगों को जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं दुनिया के लोग सताते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है मुबारक हैं वो जो मेरे नाम के सबब से सताए जाएंगे। यकीनन जब लोग यीशु मसीह के नाम से सताए जाएंगे और वो सब्र करेंगे तो वो सब्र से अपनी जानें बचाएंगे और अपने इस अमल से वो यीशु मसीह के सच्चे गवाह ठहरेंगे। बेशक कलाम हमारे लिए ताकत है, कलाम मुकद्दस हमारे लिए इत्मीनान और तसल्ली का बायस है और इसी से हम इस दुनिया पर गालिब आए हैं। देखिए, आप सर्वे करें जरा अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में, पूरी इस दुनिया में जहां जहां मसीही हैं वो मसीही लोगों को तरबियत देते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, सिखाते हैं और क्योंकि उनके पास कीमती चीज है, उनके पास आसमानी खजाना है, उनके पास इल्म है, उनके पास हिकमत है, उनके पास दानाई है और वो उस आलम कुल परवरदिगार आलम के वो लोग हैं जो उसके कलाम पर, उसके आइन पर, उसके कवानीन पर अमल करते हैं। इसलिए खुदा उन पर मेहरबान होता है और वो लोग जो उनकी बरकत से जेलस होते हैं वो शैतान के रूप में मसीहियों के खिलाफ काम करते हैं। पर हमें इन सब बातों से, इन सब होने वाले ऐसे इंसिडेंट से, जब भी ऐसा होता है हमें खबरदार रहना है कि कलाम मुकद्दस में हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया है दुनिया तुमसे अदावत रखेगी और सबब यह है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुमने मुझे कबूल किया है, इसलिए दुनिया तुमसे अदावत रखेगी। पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब ऐसा होता है तो यही वो मौका होता है जब आप मेरी सच्ची गवाही दोगे। बाज़ हम ऐसे मौके पर खुदावंद यीशु मसीह को भी, कलाम को भी भूल जाते हैं, लेकिन खुदावंद ने हमें कलाम मुकद्दस में यह तसल्ली दी है कि कभी ऐसा हो तो याद रखो ये वो मौका है तुम्हारे लिए कि आप मेरी गवाही दोगे। और इस दुनिया में मसीहियों के जिंदा रहने और इस कायनात में इंसान के भेजे जाने का मकसद ही यही है कि लोग आसमानी बाप कादिर मुतलक खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, उसकी बंदगी करें और उसके बेटे यीशु मसीह की गवाही दें। और ये गवाही कब हमारी जिंदगी में उसकी मर्जी को पूरा करती है? जब इस तरह इंसिडेंट्स हमारी जिंदगी में आकर हमें खौफ में मुब्तला कर देते हैं और हमें तकलीफ देते हैं और यही वो मौका है कि हम अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और उसके बेटे यीशु मसीह की गवाही दें। कलाम मुकद्दस हमारे लिए तसल्ली का बायस है। और फिर से मैं एक बार ये आखिरी आयत मुकद्दसा में से पढ़ूंगा जहां लिखा है, और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। सुनिए जी, खुदा यीशु मसीह ने कहा जब भी ऐसा हो, जब भी तुम्हारी जानों का, तुम्हारे माल का और तुम्हारे घरों का और तुम्हारे बाल बच्चों का दुनिया तुमसे अदावत रखते हुए नुकसान करे तो यह बात याद रखना, तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा नहीं होगा। जिसने ये बाल बनाए हैं, जिसने आपको बनाया है, वही फरमा रहा है तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। खुदा अपने वादों में सच्चा और कादिर है, वो कभी अपने वादों से फिरता नहीं है। मेरा ईमान है कि जब आप खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करेंगे और इस बात को हमेशा इस बात से खबरदार रहोगे कि हमें पहले से आगाह कर दिया गया है, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। जब भले वो जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, वो घरों को तोड़ सकते हैं, वो दुनिया की चीजों का नुकसान कर सकते हैं जो हमारे पास है,
لیکن وہ ہماری روح کا نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے یسوع مسیح نے اپنا لہو دے کر ہماری جانوں کو، مطلب کہ ہماری روحوں کو بچایا ہے، تاکہ ہم ابد تک اس کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ اور یہی خدا کا مقصد ہے کہ انسان جس کو میں نے اپنی صورت و شبیہ پر بنایا ہے، یہ ابدی زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد تھا۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں میں خدا یسوع مسیح کے کلام اقدس پر عمل کرتے ہوئے اس طرح اس دنیا میں رہیں کہ ہر وقت تیار رہیں یسوع مسیح کی گواہی کے لیے، ہر وقت تیار رہیں اپنی زندگی سے خدا باپ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی گواہی کے لیے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے، آمین۔